Before we do that, I need to get the questions. So let me just get the questions. Okay, so here are the questions, right? No? Where is the first one? Ah. Okay, so first we have to apply the Biot-Savart's law, right? So first question is about the Biot-Savart's law, and we know that magnetic field is I dl cross R divided by R cube, right? And Yes. we need to find out an element delta L. So delta L is delta Xi is placed at the origin and carries a current 10 ampere. So I we know. I is 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter? So y or r distance is given, right? So r is on the y-axis, which means that this is 0.5. And what would be the direction? What would J. be the direction? J cap. Absolutely correct, right? And delta x is 1 centimeter, which is 0.01, right, meter. And this direction would be as given is I, right? Yes. So now we have everything, so we can put all these values. So we have to write also the magnitude of this thing. So magnitude of R is simply 0.5, right? And magnitude of delta X is simply 0.0, right? So Yes. we solve this thing. So magnetic field would be I is 10 and dl is 0.01 I and cross 0.5 J and 0.5 Q, right? This is the question. Yes. So what would be this value? And 0.01 and 0.05, so that would be 0.005, right? I cross J would be what? What would be I cross J? Mm, is it supposed to be K cap? Yes, yes. So you have to be confirmed, right? So Mm, we apply the cyclic property, so I cross J is K, right? yes. Okay, so this is K hat divided by 0.5 into 0.5 into 0.5. So this goes 10 to the power minus 3, and this is again
So this is 10 into the 5 into 10 to the power minus 3. And this again also goes, and this is also 10 to the power minus 3. So we can cancel this thing, right? And this is 25 into 5. So this cancels out and k hat. Now we take in here 1 0 and we take 1 0. So this is 4. So this is 0.4 k hat Tesla, right? This is the magnetic field. Is it clear? Yes, sir. Okay, so only we have to apply the Biot-Savart's law, right? Please note it down. And if you have any question, please let me know. Okay, sir. Give me one moment. हाँ जी मालिक को जेई का क्लास आज नहीं रखा आपने? नहीं। अच्छा, इंडिया का 8 बजे। हाँ, इंडिया का मतलब 8:30 बजे। वीकडेज में एक। हम्म। हाँ, 6:30 बजे तो उठना दिक्कत पड़ जाता है ना वो भी। हम्म। हम्म। 7:30 8 होता है यहाँ का। तो ये मरियम क्यों नहीं आ रही है? 10 मिनट बाद 15 तारीख से उसका एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा उसका एग्जाम। हम्म। चलिए ठीक है जी। ठीक है मालिक, बाय बाय बाय। Oh, my microphone was on. It's okay, sir. I didn't hear anything. Oh yeah, whenever you have noted, please tell me. Okay, sir. Done, sir. Done. Okay, so now let us do the next set of questions, right? So now let us recall, right? What did we learn? So recalling, and there are only circular wires in here, but I will get some questions on the straight wires. So we have two kinds of wires, straight wire, right? And circular.
So straight wire has these two kinds of situation, right? Let's say that we are calculating magnetic field at this point. So that would be cross, and let's say the current is going like this. And let's say this distance is r. So magnetic field is simply mu naught I by 2 pi r, right? And let's say we are calculating like this, semi-infinite wire, right? So for in this case, again cross, but this is mu naught I by 4 pi r, right? For circular, we have the complete circle, and at center we are calculating, right? So this would be, if the current goes like this, then that would be again cross. And this is mu naught I by 2r, right? Or let's say radius is r. And if we have a semicircle, right, let's say the current is going like this. So again, at center, this would be cross, right? And this is mu naught I by 4r. And if we have an arc, right, and again we are calculating at center, and the current is going like this, so this would be cross. And let's say now we are calculating at particular angle theta. So then this would be mu naught I by 4 pi r, and this is theta is equals to L by r, right? So, okay, theta is L by r, so L is r theta, right? So this is r theta, so r cancel, and this is mu naught I by 4 pi and theta. But yeah, oh, so there is, okay, what I'm doing. There has to be, yeah, this would be r, right? 4 pi r, right? So this should be 4 pi r, right? Why it would be 4 pi r? Can you tell me? Because like mm, Hmm. it's like a part of a circle, that's why. Yeah, so you are correct. So you see that whenever we have a doubt in a formula, what Mm. do we see? What do we see? We Mm. see the dimension, right? Yes. So you see that in here, I by r is dimension, right? Mm. I by r is dimension. So I by r has to be there, right? Theta is dimensionless. Mu naught is everywhere, constant. So theta is dimensionless. So this should be I by r. And Mm. why this r comes? Because the magnetic field is mu naught I by 4 pi r squared and dl sine theta. Sine theta is 1, right? And then we have to integrate this thing. So mu naught I by 4 pi r square, it is outside because it is a constant. dl we are integrating. This is dl, right? Yes. So Mm. it will get this arc. And this arc is, this L is r theta. So one r will be cancelled and you will get mu naught by 4 pi r. So this is dimensionally correct, right? Okay, so yeah. So this is all set of formulas that we need to remember, right? Now let us solve this question. So two identical circular coils of radius this and each having 20 turns. Oh, so whenever you have a number of turns, then this becomes mu naught Ni, right? So Mm. N is, so are mounted coaxially 0.1 meter apart. Okay, a current of 0.5 ampere is passed through both of them in the same direction, in the opposite direction.
find the magnetic field at the center of each coil, right? So the current is passed through both of them in the same direction and in the opposite direction. Okay, so yeah, let me give me there's a mail. Yeah, so we have two circular coils, right? 1 and 2. They are coaxial, and this one they are 0.1 meter apart, and this is 0.1, right? And then Yes. now these two currents, right? So first they are saying that they are in the same direction. The current is passed in the same direction, right? So for the smaller one, magnetic field, because let's say if they are in the same direction, so magnetic field would be where? If I take this direction, what would be magnetic field? It'll be outside. It would be outgoing. Yes, it would be Yeah. outgoing, coming, yeah, coming out of the screen, right? So Yeah. that direction is point. And for this one also, that direction would be point. So Mm. both will have a hat direction, right? Yes. So magnetic field would be the vector sum, right? Right? Yes, sir. So so then B1 would be how much? Mu naught I by 2R. Mm. Then the direction is k hat. And this would be B1 or B2 would be mu naught I by, and you see that this is 0.1, this is 0.1. So R2 would be 2R1, right? Is Mm. it clear? So Yes, sir. I will write it as B2, let's say the bigger one. So that has 2R. This is R, right? Clear? So I will Yes, sir. write it as 2 into 2R. So this is mu naught, and this is also k hat. So mu naught I by 4R k hat. So this would be total magnetic field would be B1 plus B2, which is mu naught I by 2R k hat plus mu naught I by 4R k hat. Right. So this would be how much? Mu naught I and 2R I can take common. K hat also I can take common. This is 1 plus 1 by 2. So this is 3 by 2. Right. So mu naught I into 3 by into 2, 4 R and K hat. So mu naught is how much? 10 to the power minus 7, right? Mm. No, no, no. Mu naught by 4 pi is 10 to the power minus 7. So this is 4 pi into 10 to the power minus 7, right? And Okay, sir. then, yeah, because mu naught by 4 pi is 10 to the power minus 7, right? So this is mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. Okay, so 4 pi into 10 to the power minus 7, I was how much? I was 0.2. 0.5 and 3 and k hat divided by 4, r was 0.1, right? So this point and this point cancels, and this is 4 and 4 cancel. So 5 and 3, 15 pi into 10 to the power minus 7 k hat. That is the answer for first part, right? Yes, sir. Second case, for the second case,
One is this direction and the other one is this direction. Right. So the bigger one is in the opposite direction. Right. Yes. So let's say this B1 would be how much? Mu Mu naught naught by by 2R. 2R. What would It's going inside, right? so minus K hat, right? Mm. B2 is same. 4R I will directly write because this is 2R, right? So Mm. okay, not eat these steps because yeah, so 2 into 2R. And then K, opposite direction, right? Yes, sir. So B1 plus B2 would be B2 minus B1, right? Because this is, I should not write Mm. this again, right? So I should be uniform, right? I should not directly write. So then this would be B1 is minus of mu naught I by 2R, and this is plus of mu naught I by 4R and K hat. So mu naught I by 2R is common, and then this is minus 1 plus 1 by 2, right? So this is minus half, right? So minus of mu naught I and then 2 into 2, 4R K hat. So this is minus of whatever this is, Mm. half of that, 7.5, right? Into 10 to the power minus 7 K hat. Oh, no, 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 not half of that. So I have to write it. Yeah, so this is 4 pi into 10 to the power minus 7. I is 0.5. This is 4 and this is 0.1. So this cancels, and this is minus of 5 pi into 10 to the power minus 7 K hat. That is the magnetic field. Clear? Yes, sir. Okay, so please note down the question and the answer, right? Please note it down. And in the file, I will just mail one.
Can you please scroll? Yeah, sure, sure. Is it okay? Yes, sir. Oh, Mariam is joining now. वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज आप बहुत लेट हो गए हैं। जी सर, आज मैं स्कूल से बहुत लेट आई थी और इस वजह से थोड़ा धन्यवाद हर चीज। कल भी आप नहीं आ पाए थे, कल भी आप एब्सेंट थे। जी वो क्योंकि आज पेपर था, मैंने कुछ हम्म। सेल्फ स्टडी करनी थी, इस वजह से मैंने सोचा ज्वाइन ना करूँ, क्योंकि हम कुछ और ही पढ़ने हम्म। वाले थे यहाँ पर, तो मैंने वो चैप्टर कर अच्छा लिया था। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। और 15th को एग्जाम है ना आपका? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? सर एग्जाम कल था, आज था। अच्छा, आज था आपका फिजिक्स का एग्जाम? हाँ अरे बाप रे, और 7 चैप्टर? हाँ। कैसा कैसा गया? अम, अच्छा ही गया, मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर गया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, और अच्छे से हाँ प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। 4th चैप्टर हमने जी। स्टार्ट किया है, तो ओके अच्छे सर। से प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंशाल्लाह। जी ओके, ये क्वेश्चन है, आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा ये। जी। यहाँ से शुरू है। कहाँ गया?
जैसे ही आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मुझे बताइएगा। थोड़ा स्क्रॉल करें। स्क्रोल। सर यस। सर अभी यहाँ पर मई में नीट का एग्जाम होगा तो मैं वो लिखूंगी, तो उसके लिए आप हम्म। प्रिपरेशन करा सकते हैं? नीट के लिए। जी। हम्म। नीट के लिए तो यही सीबीएसई पोर्शन होगा, और आपको अरिहंत के जो 20 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, नहीं 20 ईयर नीट तो हम्म। अभी शुरू हुआ है। जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब नीट के ही पेपर्स? हाँ, नीट के ही पेपर्स। नीट के अच्छा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो हो जाएगा। हम्म, ठीक है। चलो, इतना मुश्किल होता है या फिर बस ऐसे ही बना के रखा हुआ है, इतना हार्ड है हार्ड है? मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इतने हाँ सर, सारे वो बच्चे बैठते हैं। 25 लाख एग्जाम लिखेंगे तो कंपटीशन तो होता ही है। इतने लाख बच्चे होते हैं, ऊपर से जो आजकल जो स्कोर भी जा रहा है ना, कट ऑफ। हाँ, रैंक सिस्टम भी बहुत खराब है। हाँ, सिस्टम में कट ऑफ भी 720 का पेपर है तो कट ऑफ 660 और 700 पे कुछ हो रहा है। हम्म। लेकिन आप लोग का तो एनआरआई कोटा होगा, तो आप लोग को, हाँ आप सर लोग उसमें को, पैसे बहुत लगेंगे। हाँ वही पैसे बहुत लगेंगे। सर पैसे पैसे तो नहीं बहुत। लगाने, डॉक्टर बनना है तो पैसे नहीं लगाने, वरना तो कोई और चीज भी करते हैं। आजकल डॉक्टर इतना इंजीनियर में अगर पैसे लग के पढ़ा रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। वो तो अपने, हाँ खुद से करके करना चाहिए, कंपटीशन हम्म। क्लियर करके। लेकिन जी। चक्कर यही है ना कि मतलब सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि एजुकेशन हाँ बहुत ही महंगा हो गया। जी। मैंने सुना था वहाँ पे सीट्स वगैरह भी खरीद रहे हैं 50 लाख रुपए दे के। अरे बाप रे, नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है, अब कुछ हाँ, भी हो दिए हैं सकता किसी लोगों ने। लाइक रैंक 1 के लिए उन्होंने दिए हैं कि रैंक 1 चाहिए तो फिर आराम से सीट तो मिल ही जाएगी। है। तो वो 50 लाख दे भी रहे हैं, ऊपर से फीस भी तो होता है ना कुछ उनका। फीस तो जब एम्स मिल गया तो एम्स में कोई फीस नहीं है, 1300 रुपए 1200 रुपए ऐसे है। बाप रे। अब वो वो सब परेशानी सीट की ही है। अब वो बंदा 50 लाख दे के जाएगा, इंटर करेगा, तो वो हम्म। तो उसको अपने पैसे रिकवर करने के लिए वो मरीजों को लूटेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। क्योंकि उसको तो पूरा जिंदगी लग जाएगा ना वो 50 लाख कमाने में, तो जितना। सही बात। तो इसीलिए पता नहीं क्या है। चलो, देखते हैं क्या होता है। तो नीट के अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम है, इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों सब तो में। खानदान पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग ही तो नहीं सब्जेक्ट्स होते ना, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने कुछ इतना कोशिश फाइनेंस किया का। बनाने हाँ, कुछ फाइनेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, या कुछ इकोनॉमिक्स, या कुछ मतलब साइंस स्ट्रीम से ही बहुत सारे बायोफिजिक्स जिसमें जेनेटिक्स और हाँ ये सब सर, कर रहे एक हैं। एक दो बार ट्राई करूंगी, नहीं हुआ तो फिर ऑफ कोर्स वही कुछ हाँ और करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, जहाँ इंटरेस्ट हो और जहाँ पे मन लगे वही करना चाहिए। जी। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया। जी। जी सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्योंकि मरियम अभी आई तो फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी सर्कुलर वायर का या किसी स्ट्रेट वायर का।
तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा राइट हैंड रूल, और याद रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, कि अगर सर्कुलर है तो म्यू नॉट बाई 2r होगा, अगर सेमी सर्कुलर है तो म्यू नॉट बाई 4r, और अगर आर्क है तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r थीटा। लेकिन ये थीटा जो है, मरियम बताइए कौन सा थीटा है, कौन से यूनिट में है ये थीटा? कौन सा? ये थीटा कौन से यूनिट में होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर कौन सा थीटा? अच्छा, मैं शेयर, ये रहा ये थीटा, ये वाला स्क्रीन मेरा दिख रहा है आपको? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये कौन से यूनिट में होना चाहिए, ये फॉर्मूले के साथ कौन से यूनिट में होना चाहिए? हम्म, ये फॉर्मूला अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये होना चाहिए रेडियन में। ठीक है। ठीक है, क्लियर? ओके। और मतलब और वैसे अगर 3D वगैरह में। हाँ, ये थीटा अगर ये जैसे ये क्वेश्चन देखें आप, इसमें कोई एंगल है ना, तो ये वाले एंगल के लिए ये थीटा होना चाहिए रेडियन में। लेकिन अगर हम इसको डिग्री में लिखें तो ये होना चाहिए म्यू नॉट, और ये रेडियन से डिग्री में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन से डिग्री क्या होता है, पाई होता है 180, तो 1 रेडियन जो होगा 180/पाई, तो इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी थीटा रेडियन है तो 180/पाई, ये आंसर होगा। तो उल्टा होगा या, ओके, रेडियन को डिग्री में बदलना है, हाँ तो यही होगा, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, और आर्क लेंथ होता है θ/360 इंटू 2 पाई r। तो ये 2 पाई और ये हो गया 2, ये आर कैंसिल, और ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 720, और ये थीटा होगा, आर और ये थीटा। अब ये थीटा जो है डिग्री में, तो अगर थीटा रेडियन में है तो ये फॉर्मूला, अगर थीटा रे डिग्री में है तो ये फॉर्मूला, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला। ओके, इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि a long wire having a semicircular loop of radius r carries a current, find the magnetic field due to entire wire at the O। सो हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, ठीक है? तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने कंट्रीब्यूशन होंगे आप लोग बता सकते हैं? ये ऐसा कोई शेप है, तो कितने कंट्रीब्यूशन होंगे इसमें? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, कितने कंट्रीब्यूशन होंगे? 2। 2, कौन कौन सा? एक तो ये साफ दिख रहा है, सेमी सर्कल वाला, और ये जो स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। तो एक ये और एक ये, 3 हो गया ना? हाँ लाइन और 2। लाइन 2, तो यहाँ पे 3 कंट्रीब्यूशन है। एक तो है बी लाइन 1, दूसरा है बी सेमी सर्कल, और तीसरा है बी लाइन 2। और हम निकाल रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर पे निकाल रहे हैं। ठीक है, ये रेडियस जो है वो है आर। अब ये लाइन के केस में हम भी निकाल रहे हैं उसी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होगा ये? अगर उसी लाइन पे, जैसे हमने ये अभी देखा है कि अगर ये वायर है, और हम यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं कहीं पे, इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे हम निकाल रहे हैं, उसी लाइन पे, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन पे? म्यू नॉट बाय
Mu naught I by 2. म्यू नॉट आई, वो तो इसके लिए होता है। अच्छा, मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि एक तो करंट निकालें यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड हाफ Okay, डिस्टेंस, Biot-Savart law. तो ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है इस केस में। एक तो निकालते हैं कि बिल्कुल एंड पे सेमी इन्फिनिट वायर, ठीक है, तो इस केस में Hmm. होता है ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। लेकिन अगर हम इसी लाइन पे निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इस केस में जो होता है, क्योंकि अगर हम रिकॉल करें तो बायो सेवर्ट्स लॉ होता है, ये हटा के, Hmm. म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और आई डीएल साइन थीटा होता है। अब इस केस में साइन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। Yes. साइन 0 0 होगा, तो ये पार्ट जो है इस केस में बी जो होगा 0 होगा। तो उसी लाइन पे निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो यानी कि पहला और तीसरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 होगा, ये वाला 0 और ये वाला 0, ठीक है, क्योंकि ये सेम लाइन पे निकाल रहे हैं। तो सिर्फ जो होगा कंट्रीब्यूशन वो सेमी सर्कल का होगा, और सेमी सर्कल का अगर हम निकालें तो अभी हमने देखा है वो होता है म्यू नॉट आई बाई कितना, 4 पाई आर। और डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, अच्छा सिर्फ मैग्नेटिक, Outwards. आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, Towards. आउटवर्ड्स। जरा ऐसे अगर 4 फिंगर्स को अगर कर्ल करेंगे, ये है ना डायग्राम, ऐसे जा रहा है करंट, तो इस डायरेक्शन में अगर हम 4 फिंगर्स कर्ल करेंगे तो वो तो इनसाइड दिखा रहे हैं, समझे? किस डायरेक्शन में होगा? फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहे Inside होगा. हाँ, इनसाइड, इनसाइड होगा, इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड होगा ना। क्लियर हो गया आप लोग को? हैं साइड। हाँ, तो ये होगा इनसाइड यानी -k है। तो ये है आपका आंसर, ये प्लीज नोट कर लीजिए। जैसे ही आप लोगों ने नोट कर लीजिए, कर लिया होगा, मुझे बताइएगा।
मैंने 4 पाई लिखा है क्या? यही तो गड़बड़ है। ये सिर्फ आर होता है ना? आप लोगों ने करेक्ट नहीं किया मुझे। लाइन वाले में पाई आता है और सर्कल वाले में पाई नहीं आता। सर्कल वाले में जब हम वो करते हैं, जब हम निकालते हैं किसका, जब हम आर्क। निकालते हैं आर्क का, तो नहीं हो पाई आता है। नोट जैसे ही कर लिया होगा आपने तो मुझे बताइए। सर मैंने लिख लिया। लिख लिया? मरियम आपने लिख लिया? यस सर। ओके। थर्ड क्वेश्चन तो सेम है, तो इसका आंसर भी सेम होगा, लेकिन दो केसेस में। यानी अगर इस टाइप का है तो इस केस में कैसा होगा? अच्छा, ये क्या है? ये केस में तो ऐसा है, ये केस में हाँ। तो ये केस में आपका आउटसाइड आएगा और ये केस में इनसाइड जाएगा, है नहीं? तो मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये जो बोल रहा है कि ये सेम क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन ये है दोनों, लेकिन इसमें बोल रहा है कि वैल्यूज दे रखी है, करंट का वैल्यू दे रखा है, रेडियस दे रखा है, सब दे रखा है। तो बोला है कि ए केस में, मतलब ये पहला केस है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फिर अगर दूसरे तरीके से अगर बेंड करें इसको, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या नहीं होगा? तो जरूर चेंज होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। ये क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। ये क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि अलग तरीके से बेंड कर रहा है, एक तो ऊपर से बेंड किया, दूसरा नीचे से बेंड किया, तो करंट का लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो वो आर्क जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। आर्क ऑपोजिट हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे मानते हैं कि ये जो अल्फा है वो रेडियन में, ठीक है, ये अल्फा रेडियन में है। तो हमारे पास अगेन ये कोई PQRS, अच्छा ऐसे जाते हैं सही से, PSRQ, जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है PSRQ। ये लूप है नहीं? तो इसमें कितने हम्म, कंट्रीब्यूशन होंगे आप लोग बताइएगा।
कितने कंट्रीब्यूशन होंगे? मैं फोर। लिखता हूँ, आप लोग बता। हाँ, कितने? 4 contributions। 4 कंट्रीब्यूशन, ये तो क्लियर हो गया ना। एक तो पीएस का होगा, हम्म। फिर होगा एसआर का, फिर होगा आरक्यू का, फिर होगा क्यूपी का, है नहीं? तो यस। पीएस का कंट्रीब्यूशन देखें कि हम कहाँ मेजर कर रहे हैं, यहाँ तो अलोंग दी सेम लाइन मेजर कर रहे हैं, कहीं और मेजर कर रहे हैं? पीएस सेम लाइन। वाला सेम लाइन में, तो ये 0 हो गया, है नहीं? हम्म। और सिमिलरली जो आर क्यू है, ये भी सेम सेम लाइन में, तो 0 है। ठीक है, क्योंकि थीटा 0 है, यहाँ पे भी थीटा 0 है। और ये अगर थीटा अगर मैं लिखा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि सेम लाइन, सेम लाइन। यानी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ बी जो होगा वो होगा बी आर क्यू एस आर, और बी क्यू पी। अब देखते हैं एस आर का जो होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये एक आर्क वायर है, और आर्क वायर के केस में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और होता है थीटा रेडियन में। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, आप लोग बताइएगा। एस आर का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड। आपका हाथ कैसे जा रहा है? ये अगर मैं ऐसे करूँ तो ये इनसाइड हाँ। जाएगा ना। हाँ, मैं गलत हैंड यूज कर रही थी। अब मुझे नहीं नहीं, रियलाइज हमेशा हुआ। राइट हैंड, राइट 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 हैंड, हाँ। राइट हैंड। अच्छा, आप लेफ्टी हैं क्या? हम्म। नहीं नहीं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ये राइट हैंड ही इस्तेमाल की थी, पता नहीं क्यों मैं फिर लेफ्ट हैंड करने लगी अचानक से। अभी ये मुझे रियलाइज हुआ, तब भी उल्टा आ रहा था मुझे। हाँ हाँ, वही वही। ओके, तो ये होगा इनसाइड, यानी माइनस के हैट, माइनस के हेट आ गया। अब ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है आर का, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी, थीटा जो है वो अल्फा है, माइनस के हेट। उसी तरीके से अगर हम क्यूपी का देखें, तो क्यूपी का म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। इसका है ए, और ये है अल्फा, और ये होगा क्योंकि ये दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये सिंपली के हटा है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। बाई ए एंड के है। अब जरा हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इन दोनों का सम होगा। तो एक आएगा माइनस म्यू नॉट आई एल्फा बाई 4 पाई बी के हैट, और प्लस म्यू नॉट आई एल्फा बाय 4 पाई ए आई के हैट। तो कॉमन आ गया यहाँ पे म्यू नॉट आई एल्फा बाय 4 पाई, कॉमन आ गया, के हैट भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये आएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, है नहीं? तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एल्फा, और ये आ जाएगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई ए बी के एट। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लियर हो गया आप लोग को? यस सर। ओके, तो ये प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, और जैसे ही स्क्रॉल डाउन करना होगा मुझे बताइएगा।
मेरी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मरियम का डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करना होगा मुझे बताइएगा। Yes, sir, can you slow down? हम्म। जैसे ही आप लोग ने आपने नोट कर लिया होगा मुझे बताइएगा। सर मैंने नोट कर अच्छा, कोई आपने तो बताया क्यों नहीं आपने? अभी करा। अच्छा, अभी अभी। ओके। हम्म। तो आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है? फर्स्ट से 1 2 और ये 3 4 ये सब, वो कौन सा वाला डिफिकल्ट लगता है? सेकंड चैप्टर। सेकंड वाला? सेकंड तो हम लोगों ने किया इतने सारे क्वेश्चंस, अभी भी डाउट्स हैं? हाँ, मैं उसे रिवाइज करूंगी और फिर अगर कुछ डाउट रहेगा तो मैं पूछूंगी आपसे। हाँ प्लीज प्लीज, उसको जल्दी से रिवाइज कीजिए ताकि हम लोग जो है 7 चैप्टर्स जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट रहे। इसमें कोई ओके। डाउट्स, कोई डेरिवेशन या कोई इसमें कोई डाउट्स ना रहे। ओके ओके, सर। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है, अगेन यहाँ पे, यहाँ पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। और अगेन हम देखें तो इसमें 3 कंट्रीब्यूशन है या नहीं? यस। और अगेन जो 2 कंट्रीब्यूशन है वो 0 है, हम्म। और सिर्फ आर्क वाला कंट्रीब्यूशन है। कैसे लिखें इसको? हम्म। तो अब यहाँ पे ये आर्क है लेकिन यहाँ डिग्री में दिया हुआ है। तो डिग्री में दिया हुआ है तो इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ बी आर्क होगा। और यहाँ पे जो बी आर्क होगा वो डिग्री में है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? μ0I/720 आर और थीटा। यही था ना फॉर्मूला? जी सर। अगर नहीं याद रहे तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि μ0I/4 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क विच इज आर्क लेंथ। तो ये क्या आ जाएगा? μ0I/4 पाई r स्क्वायर
थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, इस तरीके से। तो 2 पाई ये हो गया 2, ये आर तो ये 720, यानी वही आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 720 आर और थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। हम्म, क्या देखिए कितना है आर्क का थीटा। आर्क बड़ा है, छोटा ओ, नहीं है आर्क। 360 माइनस 90। 270 है नहीं। हम्म। और डायरेक्शन जो है वो है -k है। तो ये आ गया आपका म्यू नॉट आई 270, ये आ गया 720, और ये आ गया आर, और ये -k है। ऐसे यहाँ रख देते हैं, k है, ठीक है। तो कितने मरतबा में कैंसिल होगा ये? 27, 3 9 ज़ा, और ये आ गया 3 2 ज़ा, और ये कितना है? अरे 6। अच्छा, हाँ ये आएगा। यानी अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट आ गया आपका -4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई आ गया आपका 10 एम्पियर, और कुछ बचा क्या? 9 डिवाइडेड बाई 26। आर जो है वो है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10⁻⁻²। तो ये 3 से तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 से, और ये 13 से। तो ये कितना आ गया? 6 पाई बाई 13, और ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो ये 10⁻³ तो 10⁻⁻4 की हैट, ये आ जाएगा आंसर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है टोटल। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। एग्जाम में शायद ये पाई भी सॉल्व करना हो, पूरा सॉल्व करना हो, और ये टेस्ला तो लिखना जरूरी है। अरे बाप रे, यूनिट तो टी खाली लिखते हैं ना, टेस्ला तो नहीं लिखते, खाली टी लिखते हैं। एक तो गॉस होता है और एक टेस्ला होता है ना? तो कहीं गॉस में लिखते हैं, कहीं टेस्ला में लिखते हैं। ये आप नोट कर लीजिए प्लीज। जी।
थोड़ा सा हम्म हो गया सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 6 क्वेश्चन का डायग्राम किधर है? देखूं जरा इधर है। अच्छा, इसका डायग्राम ही नहीं। ओके, चलिए कोई नहीं। तो इसका तो डायग्राम नहीं मिला है 6 क्वेश्चन का। तो हम करते हैं ये टाइप का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी हमने अब जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे सेंटर पे। लेकिन इस केस में कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये कोई कॉइल है और ऐसे मान लीजिए करंट जा रहा है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं एक्सियल लाइन पे, ये ऐसे कोई रिंग है, सर्कुलर लूप है और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं एक्सियल लाइन। ये क्लियर हुआ ये डायग्राम? जी यानी सर। ये रिंग जो है, ये जो रिंग है ये बाहर निकल रहा है और ऐसे जा रहा है। मतलब ये जेड एक्सिस में भी जा रहा है और ये वाई एक्सिस में, तो वाई जेड एक्सिस में। तो वाई जेड एक्सिस में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस में होगा। और मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है, इसका जो रेडियस है वो है आर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2। और ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये डायमेंशनली क्या होगा। डायमेंशनली हमें पता है कि आना चाहिए I/R, है नहीं? हम्म। अब ये देखिए ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, उसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? आर आएगा। हम्म। उसका क्यूब करेंगे तो आर क्यूब आ गया। और आर स्क्वायर बाई आर क्यूब यानी आर आ जाएगा। तो ये डायमेंशन हम्म। करेक्ट है। क्लियर? यस सर। अब हम चेक करते हैं कि मान लीजिए हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो है वो होता है आपका कितना? वो होता है म्यू नॉट I/2R, है नहीं? हम्म। अब ये देखिए कि ये अगर यहाँ पे हम निकालते हैं तो ये सेंटर हो गया। ये सेंटर हो गया जी। ना? अब ये सेंटर पे एक्स कितना हो जाएगा? सेंटर पे एक्स कितना होगा? यहाँ मान लीजिए एक्स ऐसे बढ़ रहा है, एक्स यहाँ से यहाँ एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ ऐसे हम जा रहे हैं, एक्स मेजर कर रहे हैं। तो जब हम एक्स यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो यहीं पे अगर निकालेंगे तो एक्स कितना होगा? जीरो ओरिजिन हो गया। जीरो। बिल्कुल, क्योंकि हम तो बढ़े ही नहीं, मतलब एक्स डायरेक्शन में तो बढ़े ही नहीं, यहीं पे हम्म। निकाल रहे हैं। तो एक्स जीरो हो गया। अब एक्स अगर जीरो रखें तो देखें कि बी सेंटर का आना चाहिए वैल्यू। एक्स जीरो पे बी सेंटर हो गया ना? तो यहाँ पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, एक्स तो जीरो है और ये आ गया आर स्क्वायर पे पावर 3/2। तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R क्यूब। ये आर क्यूब का ये कैंसिल, तो ये आ गया म्यू नॉट I/2R, जो कि हमारा रिजल्ट था।